مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند تو ہی ہمارا خدا ہے، ہم تیری تمجید اور تیری حمد کریں گے، تیرے نام کی ستائش کریں گے اور اس عجیب کام کو بیان کریں جو خداوند نے ہم سب کے لیے کیے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سلامت رکھا اور زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا۔ خداوند جی شکر گزاریوں کے ساتھ آپ کے پاک مذبح کے نزدیک آتے ہیں باپ جی، اپنے آپ کو دھوتے اور پاک کرتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو مکاشوہ اس کا 7واں باب اس کی 17 میں ہے، یوں محکوم ہے کہ وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کے آنکھوں کے سب آنسو پونچھے گا۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو، کیونکہ ہمارا خدا ہی تعریف کے لائق ہے، وہی حمد کے لائق ہے، کیونکہ اس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اسی لیے زبور 23 کی پہلی میں خداوند ہمیں ہری ہری چراگاہ پہ لے جاتا ہے، وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے چلتا ہے، وہ ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیشہ ہمارا خداوند ہم سب کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں، کبھی ہم سے درس بردار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محبت سے بھرا خداوند خدا ہے اور اس کی محبت لازوال ہے۔ اور کلام مقدس میں یوں بھی محکوم ہے کہ جو آنسوؤں سے بوتے ہیں، جو خداوند کی حضوری کے طلبگار ہوتے ہیں، رو رو کے تکیوں کو بھگو دیتے ہیں، رو رو کے اس کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ سب ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہو جاتے ہیں اور خطائے غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں، اس کے پھاٹکوں پہ آ جاتے ہیں، تو وہ اس کا کلام ہمیں خود کہتا ہے کہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے جو ہم سب کے آنکھوں کے آنسو پونچھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ موت ہوگی، نہ اندھیرا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، کیونکہ وہاں ہمارا خداوند ہمارے ساتھ رہے گا۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں گی اور نئی چیزیں وہ ہمیں نیا بنا دے گا، کیونکہ میرے باپ کو اور آپ کے باپ کو ہماری فکریں ہیں، اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ اگر ہم یوحنا کا 10واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب، اس کے 10ویں باب کو پورے کو دیکھ لیں تو خداوند کہتا ہے کہ سچ مچ میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہی جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں، تو دروازے سے صرف وہی داخل ہوتے ہیں جو بھیڑیں ہیں، اور خداوند کیا ہے؟ ہمارا دروازہ ہے، اور ہمیں اسی دروازے سے اندر داخل ہونا ہے۔ اور ہمارا خداوند جس نے ہمارے لیے زندگی کے راستے کھول دیے، اس نے زندگی دے دی ہمیں، خدا نے محبت کی اور یسوع نے ہمیں زندگی دے دی، لازوال زندگی خدا نے ہمیں بخش دی ہے، تاکہ ہم اس بھیڑ خانے سے، اس دروازے سے داخل ہوں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا کہتا ہے وہی ہمارا دروازہ ہے، ہمیں اسی میں سے داخل ہونا ہے۔ اور اگر ہم یہ پورا کلام پڑھیں تو اتنا پاورفل ہے، ہمیں ایک ایک بھید کی باتیں اس میں سے نظر آئیں گی۔ اس کی 7ویں میں لکھا ہے کہ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اور جتنی اس میں آتی ہیں وہ اس کے نام پر رہتی ہیں، کیونکہ دروازہ خداوند ہے۔ ہمیں اسی دروازے سے داخل ہونا ہے، اسی راستے سے جا کر ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، ہمیشہ کی نجات پانی ہے۔ اور جب ہم اس میں سے داخل ہوں گے تو خدا کہتا ہے کہ وہاں کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا، وہ دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، رات دن وہاں روشنی ہوتی ہے، وہاں نہ کوئی آتا ہے نہ مارنے نہ چرانے، کیونکہ وہاں ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے خداوند آیا کہ وہ ہم سب کو زندگی دے اور کثرت کی زندگی دے، کیونکہ وہ اچھا چراوا ہے، اور اچھا چراوے نے کیا کیا؟ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ مزدور تو جو مزدوری کرتے ہیں وہ ڈاکوؤں کو، یا حادثہ ہو جاتا ہے، فرض کریں یہ بھیڑوں کو، اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھیڑیا آ جاتا ہے تو وہ بھیڑوں کو چرا لے جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟
उसे छोड़ देते हैं ना कि हो चलो कोई बात नहीं। अब लेकिन हमारा खुदावन अच्छा चरावा है और वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, इसलिए वो हमें बार बार मौका देता है कि बच जाओ, बचाए जाओगे। कलाम को ले लो, हिकमत को ले लो। तो जब खुदा ने मेरे और आपके लिए एक रास्ता बता दिया, उसने कहा राह हक ज़िंदगी मैं हूँ, जो इस रास्ते से चलेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और इसीलिए खुदावन कहता है कि इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ और उसने दी है, और मेरी भेड़ें मेरी हैं। वो मेरे गले खाने की जो नहीं है उनको भी मैं लेने आया हूँ, उनको भी बचाने आया हूँ, ताकि वो बहुत सारी हो जाएं। वो अगर एक भी उसमें से कम होती है तो वो उसे ढूंढने जाता है। इसलिए खुदा कहता है मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ। आज हम अपने सारी फिक्रें खुदा पर छोड़ दें, और उसने कहा है ना कि मैं ही तुझे छुड़ाता और बचाता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। आए आज अपने जो भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं उससे दे दें, क्योंकि उसने कहा है, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं बचाऊंगा। मैं तुम्हारे आँखों के आंसू पोंछूंगा। जो भी तकलीफ़ हो, चाहे किसी भी पीड़े में हो, चाहे किसी भी कमी में हो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही तुम्हें छुड़ाता और मैं ही तुम्हें बचाता हूँ। जब उसने कहा है तो हमें सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि वो खुद कहता है अगर तेरा ईमान ज़रा सा भी राही के दाने के बराबर भी हो तो कौन सी पहाड़ को कहेगा। पहाड़ क्या है? वो जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, लानते हैं, सिर्फ उसकी हजूरी में आ जाए, उसके करीब आ जाए, उसके साए के तले आ जाए, तो ये सारी बीमारियां, उसने कहा मैं तुम्हें इन सब से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और उसका कलाम सच्चा और बरहक है। उसने कहा है वो ऐसा करेगा तो वो करेगा। हमें सिर्फ उस पर यकीन करना है, हमें सिर्फ खुदा के कलाम पर तवज्जो देनी है। खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है, सिर्फ इसे ले लेना है। और जब हम इसे ले लेंगे तो उसके वादे हैं जो उसने हम सब से किए हैं कि हमें वो छुड़ाएगा, हमें हर बीमारी से, हमें हर दुख से छुड़ाएगा। इसी तरह अगर हम देखें असाया उसका 25वां बाब उसकी 8 आयत में यूं माकूम है कि वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा। और खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा। वो अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरे ज़मीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावन ने ये फरमाया है, खुदावन ने खुद कहा है कि मैं ये करूँगा और वो करेगा। हमें सिर्फ उस पर तवक्कुल करनी है, हमें सिर्फ ईमान रखना है, हमें सिर्फ भरोसा करना है, हमें सिर्फ आस उम्मीद अपने खुदा पर रखनी है। जब हमारी आस उम्मीद खुदावन पर होती है तो वो हमें छुड़ाता और बचाता है। वो अपने लोगों को जो उसके नाम से मांगते हैं, वो खुद कहता है कि वो उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारा खुदा है, उसने हमें बनाया है। आए आज अपनी जितनी भी बीमारियां यीशु के नाम से उसकी हजूरी में रख दे और उससे मांग ले, उससे वो सारे हथियार इख्तियार ले ले जो उसने कहा कि देख मैं तुझे इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुचल ले और दुश्मन की सारी कुदरत पे गालिब आजा, तुझे सर नहीं पहुँचेगा। आए वही इख्तियार लेते हैं, उसी इख्तियार से जिस इख्तियार से खुदा ने मुझे दिया है, उसने कहा है कि मैंने दिया है। आए उन सारी बीमारियों को, उन सारे दुखों को, उन सारी तकलीफ़ों को, उन सारी कमियां कमज़ोरियां को, बेरोज़गारी को, खुदावन जी जिस घर में बेरोज़गारी है, बीमारी है, लानत है, यीशु के नाम से जाए, क्योंकि आपने इख्तियार दिया है। इन्हें हमें डांटना और अपने पैरों के नीचे कुचल देना है बाप। उसी इख्तियार से आज इन सारी गंदगियों को, बीमारियों को यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि जहाँ यीशु नाम आ जाता है वहाँ कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं रहती बाप। आपके जिंदा जलाली नाम से आज हमने हुक्म दिया है कि ये
बीमारियां इस घर से, इन जिंदगियों से चली जाए, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारा नजात दहिंदा है और उसी में हमने नजात पाई है। और उसी ने खुद वादा किया है कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं उन्हें शिफा देने आया हूँ। तो बाप आज उनकी शिफा नाजिर करे खुदावंद, उन्हें शिफा दे दे, ताकि सारे खुदावंद जितने भी ये दुआ सुनते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं, आपसे मांगते हैं, इस कलाम को ले लेते हैं, और आपके वादे हैं ना कि मैं सुनूंगा और मैं जवाब दूंगा। तो बाप होने दे खुदावंद, आप ही ने तो कहा मेरे कान भारी नहीं हो जाते, मेरा हाथ छोटा नहीं हो जाता। बाप अपने फजल वाले हाथ से बढ़ाकर खुदावंद जी अपनी शफकत से आज सारी कमियां कमजोरियां दूर कर दे। बाप आज कोई खाली ना जाए बाप जी, आज रहम और फजल लेकर जाए खुदावंद जी, क्योंकि मेरा बाप रहीम और रहम करने वाला खुदावंद खुदा है, वो लश्करों का खुदा है खुदावंद जी। सब पर रहम करे, सबके लिए कारोबार के लिए दुआ करते हैं, रोजगार को दे बाप जी, ताकि हर जुबान आपका शुक्र करे, ताकि हर जिंदगी आप में शादमान रहे, क्योंकि आप हम सब की खुशियों को पूरा करने आए हैं और आपने पूरा किया है बाप जी। हम शुक्र करते हैं। शादमानी सिर्फ आपके कलाम में, आपकी कुदरत में है, आपकी हजूरी में है खुदावंद जी। आप अपने लोगों को शादमान करते हैं, जो आप पर ईमान रखते हैं, जो आप पर तवक्कुल करते हैं, उन्हें आप शर्मिंदा नहीं होने देते, क्योंकि आप मेरे खुदा हो। आप भले खुदावंद खुदा हो, लश्करों के खुदा हो। खुदा का खौफ उसका खजाना है। हम जब उसके खौफ में खड़े रहेंगे, थरथराएंगे, कांपेंगे, तो वो हमें अपने अल्लाही खजानों से मुहैया करेगा, क्योंकि वो मुहैया करने वाला बाप है बाप जी। जितने बेटे बेटियां जिनके पास औलाद जैसी रहमत नहीं बाप जी, उसी रहमत को, शफकत को मांगते हैं, उस कलाम को मांगते हैं। आप ही ने तो कहा कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, ताकि तुम्हारा नाम दुनिया में बढ़े बाप जी। वही कलाम को उन सब के लिए मांगते हैं। और आप ही ने कहा कि मेरी कोई बेटी बांझ नहीं रहेगी, मैं उसे फलदार बनाऊंगा बाप। उन फलों की तो खुदाम जी हम आस उम्मीद रख कर आपसे मांगते हैं खुदावन, सबको फलदार बनाए, ताकि वो आपकी सताइश करें, शुक्रगुजारी करें। जब वो पहला फल हो तो वो आपका हो बाप जी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर किस्म का पहला फल मेरा है। तो खुदाम जी हम उन्हें खुदावन दे, ताकि वो इस वादे के साथ इस बरकत को रिसीव करें, और खुदावन जी अपने पहले फलों को आपके मज़बा पे रखें और शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए हाथ उठाते हैं, मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। और आप ही ने कहा कि मेरे बेटे बेटियां खुदावन के घर में हरे जैतून के दरख्त की मानिद होंगे बाप, ऐसा ही हो। आज ये कलाम हम सब के लिए मांगते हैं, और ये सारी बरकत एक दूसरे को देते हैं, ताकि खुदा का कलाम हम सब की ज़िंदगी में पूरा हो। यीशु के नाम से हमने सब मांगा और पाया है, क्योंकि हमारा खुदावन खुदा अब्दियत का खुदावन खुदा है। हमारा तवक्कुल अब तक खुदावन पर कायम रहता है, और उसकी शफकत हमेशा हम सब पर बनी रहती है। हम हमेशा शुक्रगुजारियों के साथ अपने बाप की हजूरी में और उसके नाम को जलाल दे। यीशु के नाम से हमने सब मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदावन खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, हालेलुया।